Good evening to all. I am Komal Kaur. I am from Bhuli. As far as my qualification is concerned, I hold MA and BA degree. So recently I have passed my CTET examination also. This is all about me. And if I talk about my hobbies, so I love reading and teaching. So this passion I am following of mine. So now let's go to the text and to the book which you can see here, The Road Not Taken. This poem is written by Robert Frost. So who is Robert Frost and what kind of poem he wrote in his lifetime? So let's talk about first Robert Frost. So Robert Lee Frost was an American poet. He is known for his realistic depiction of life. So what does real mean of that? Means Robert Frost was a kind of a poet who really wants to express the reality. What reality? Which is experienced by him. So the road not taken is also experienced by him. Actually, I can say confidently that it is experienced by all the human being. Why I am saying so confidently about that? Just like road not taken, the title is so simple but so meaningful. Why I'm saying that it is meaningful? Because sometimes we do have choices. We have not even a single, just more than a two, more than a five, more than a 10 we would have. But क्या होता है कुछ ये एक तरह का फैसला लेना होता है और वो आप एक ही ले सकते हो. ओके, तो दैट काइंड ऑफ थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट. ये हर इंसान के साथ होता है कि सिचुएशन आपके पास बहुत ज़्यादा होती है पर आप उसका चॉइस बस एक कर सकते हो. मीन्स वॉट एवर द थिंग इज जस्ट लाइक you are in class 9. Okay, just you are in class 9. After that you will go in 10, and after the 10 you need to choose the stream. You have to choose the stream whether you can go in science, commerce and art. बट एक ही के साथ आप जा सकते हो. आप ये नहीं कर सकते कि एक साथ आप दो स्ट्रीम को चूज़ करोगे. सो तो ये आपके लिए ये रोड नॉट टेकन बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो गया इस बात के लिए कि आप एक ही चॉइस को ले सकते हो. और वो जो चॉइस आपने किया, whatever the situation, whatever the thing it was for you, and whatever you have decided, and that decision of yours will be your future. कि आपने अगर चॉइस किया, चूज़ किया कि आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो यू विल गेट द गुड रिजल्ट. अगर आपने ये चॉइस किया, आपके पास दो चॉइसेस, या तो आप पढ़ो या तो ना पढ़ो. अगर आप पढ़ते हो तो व्हाट गोना बी हैपन? यू गोना गेट द गुड मार्क्स, यू गोना हैव द ग्रेट फ्यूचर एंड ऑल द थिंग. इफ़ यू चॉइस कि यू आर नॉट गोइंग टू स्टडी हार्ड एंड you are just taking this for granted, so what just gonna be happen? You will get poor marks, you will not have a good future, and all the things will happen. Just a single example of mine to make you understand what the real mean of that poem, The Road Not Taken. So look at the man over here. You can imagine yourself there कि आप यहाँ पे खड़े हो and two paths for you are there. एंड ऐसा तो नहीं है, बीइंग एन इंडिविजुअल पर्सन यू कैन गो इन बोथ द पाथ्स. you need to go in a first, only one single one you can choose. So here the two paths for the poet and he wants to go, but still he is in dilemma, he was in confusion which path is good to go. He really don't want to go in a bhed chal. Okay, means that everyone is just like, you will say that my friend is taking a science stream, so I also want to take the science stream. So this is not the real one na? You have to take where your interest is. Okay, so bhed is always a very bad decision है ना. So there the poet he's giving us a situation, the two parts here, and this is the overview. Okay, I was giving you the overview and I've given you up. So let's go to the text and try to understand what the really poet wants to share with us. तो आपको एक बात बता दें कि जो पोइट्स होते हैं वो उनको समझना लिटरली बहुत टफ होता है. एक्चुअली उन्हें पोइटिक लाइसेंस उनके पास होता है. वो वर्ड्स को तोड़ मरोड़ सकते हैं, वो वर्ड्स के साथ खेल सकते हैं. वो किस सिचुएशन में लिख रहा है उस सिचुएशन को आपको अंडरस्टैंड करना है, ना कि वो आपको अंडरस्टैंड करवाएंगे. द थिंग इज़ देयर, यू नीड टू गो थ्रू विद द टेक्स्ट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी डीपली. आप इसको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते. जस्ट दिस इज़ अ पोएम, आई नीड टू रीड इट आउट एंड आई जस्ट हैव टू do the question answer. This is not the real
thing is there. Real thing is there that you need to understand the things what the really poet wants to tell us, what is his experience and what he has shared to us. Okay, so let's go with the text and let me read the first one. This well-known poem is about making choices. As I told you, this is about making choices and the choice that shape us. Really, this is real thing that whatever the decision of yours will be the future of your. Okay, and Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common, ordinary and experiences. सो वो बहुत सिंपल लिखते थे, बहुत कॉमन, बहुत ऑर्डिनरी, बट लाइफ एक्सपीरियंस। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने से लाइफ एक्सपीरियंस होता है, नो। ऑर्डिनरी चीज़ों से ही लाइफ एक्सपीरियंस बनता है। चीज़ें, सिंपल चीज़ें आपके पास, बोले ना, नॉर्मल लाइफ में भी चॉइसेस होती हैं आपके पास, और कौन सी चीज़ को आप चूज़ करते हो ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी सोच पे डिपेंड करता है आपके, और उसी सोच पे, उसी डिसीजन पे आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। ओके, let's go with the text. I'm gonna recite it and I'll try to make you understand. I hope you'll understand it. So two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Look at the poem. This is a really a very beautiful poem. The one word, even a single word are gems here. Just like आप यहाँ पे देखेंगे word, यहाँ पे yellow wood यूज़ किया गया है। कितने ब्यूटीफुली एक पोइट ने बताया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया येलो वुड। जैसे कि अब वेदर चेंज होता है, मौसम जब चेंज होता है, जब ऑटम का सीज़न आता है, तो क्या उससे होता है, सारे पत्ते, सारे ग्रासेस टर्न होने लग जाते हैं, वो येलो टर्न होने लग जाते हैं, येलो में वो टर्न हो जाते हैं। तो यहाँ पे पोइट ने बताया है दैट दिस इज़ द पोइट, ठीक है, ही इज़ स्टैंडिंग हियर एंड टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड। तो आफ्टर इसके येलो वुड है, एंड ही इज़ स्टैंडिंग हियर एंड ही इज़ लुकिंग टूवर्ड्स द बोथ द रोड्स। और वो क्या देख रहा है, दो रोड हैं वो डाइवर्ज हो रहे हैं येलो वुड के अंदर, आगे वुड के अंदर वो जा रहे हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, बीइंग एन इंडिविजुअल पर्सन हाउ कैन अ पर्सन गो इन बोथ द पाथ, so he need to choose the single one, so he is saying sorry not to choose other one. So whatever he will choose, yet he has not decided which path he gonna take it up, but still he is saying sorry that I could not travel both. कितने ब्यूटीफुल इस लाइन को लिखा है पोइट ने। and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could. तो ये बोला being a traveler, वो यहाँ पे स्टूड है, ये देखिए यहाँ पे वो खड़े हैं, स्टूड हैं, खड़े हैं। क्यों वो खड़े हैं वहाँ पे, बिकॉज he is thinking so deep thinking, he's thinking and thinking about what, कि whatever the decision he gonna take it will be his future. ओके, उसके बाद से वहाँ पे वो टर्न नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई किसी भी सिचुएशन में हमें जब फैसला लेना होता है, एक डिसीज़न लेना होता है, तब हम थोड़ा रुक कर सोचते हैं। तो वही पोइट कर रहे हैं, पोइट रुक कर सोच रहे हैं कि वो वहाँ पे खड़े हैं एंड ही इज़ थिंकिंग एंड थिंकिंग एंड थिंकिंग। ओके, टू, और वो क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, दूर तक देख रहे हैं उन दोनों पाथ को, जहाँ तक वो देख सकते हैं, जहाँ तक उनका विज़न क्लियर है वहाँ तक वो देख सकते हैं। बट क्या हो रहा है कि एक वक्त पर जाने के बाद वो वुड में जो रास्ता है वो बेंड हो जा रहा है। रास्ते कैसे बेंड हो जाते हैं, तो उसी तरह वो बेंड हो जा रहा है रास्ता। तो ही कुड नॉट सी मोर देन दैट, है ना। आप तो स्ट्रेट दे सकते हो, आपकी नज़रें तो बेंड नहीं हो सकती, साइड तो बेंड नहीं हो सकती। तो ही इज़ सेइंग कि वो इतना दूर तक देख रहा है जहाँ तक वो देख सकता है। ओके, पर उसके बाद जो बुशेस होती हैं, ग्रासेस होती हैं, वो उसके विज़न को ब्लॉक कर रही है। तो इसमें पोइट रियली हमें यही समझाना चाहते हैं कि वो एक जगह पे खड़े हैं, दो रास्ते हैं, वो उन्हें देख रहे हैं और वो बेंड हो जा रही नहीं। इसके अंदर एक इंडिविजुअल मतलब है, इसके एक बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग है। इसमें क्या है कि पोइट अपने जीवन के एक रास्ते पे खड़े हैं, ही इज़ इन अ सिचुएशन वेयर ही वांटेड टू टेक डिसीजन, एंड वो उस डिसीज़न को लेने के लिए वो फ्यूचर सोच रहे हैं कि अगर मैंने ये डिसीज़न लिया तो व्हाट गोना बी हैपन इन फ्यूचर। तो वो जहाँ तक अपना फ्यूचर सोच सकते हैं तो वो सोच रहे हैं। जैसे आपने साइंस लिया, आपने स्ट्रीम लिया साइंस लेने के बाद क्या हुआ
कि आपने मेडिकल किया, एमबीए किया एंड ऑल दिस थिंग्स। तो जहाँ तक आप सोच सकते हो आप सोचते हो, जहाँ तक जितनी दूर तक आप सोच सकते हो उतनी दूर तक सोचते हो, पर एक टाइम तक आकर वो रास्ते क्या होते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं आपके दिमाग में कि व्हाट जस्ट नेक्स्ट। तो आप उस चीज़ों को सोच रहे हो। तो इसी तरह पोइट इसी बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पोइट यही हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक चीज़ का फ़ैसला लेने में बहुत वक्त लगा रहे हैं। नेक्स्ट लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेंजा। Then looked the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Thou, as for that the passing there, had warned them really about the same. So look at the lines, okay? Then took the other just as fair. So he is talking about the पाथ्स। दोनों पाथ्स उनके लिए अनजान है, दोनों पाथ्स ऐसा तो नहीं कि वो दोनों पाथ पे गए हैं, दोनों पाथ्स उनके लिए अनजान है। पर अगर वो पाथ्स के बारे में सोचे, अगर वो रोड्स के बारे में सोचे, तो वो सोच ये कितने अच्छे से वो अपनी बात को बता रहे हैं कि अगर वो दोनों रास्तों को देखते हैं और उसके बारे में सोचते हैं, तो वो ये बता रहे हैं कि जो अनदर पाथ है, जो ये सामने वाला उसको नहीं छोड़ के वो दूसरा पाथ है, वो मेरे ख्याल से बेटर क्लेम होगा, वो अच्छा क्लेम होगा। वाई बेटर क्लेम? क्यों ये वाला, क्यों नहीं वो वाला, क्यों? उन्होंने कुछ तो ऐसा देखा होगा। हम लोग भी अपने सिचुएशन में देखते हैं, प्रोज एंड कॉन्स गिनते हैं, इसमें ये अच्छा है तो इसमें ये ख़राब है, इसमें ये अच्छा है, प्रोज एंड कॉन्स काउंट करते हैं। तो इसी तरह ये कर रहे हैं कि प्रोज एंड कॉन्स को काउंट कर रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि कह रहे हैं जो अनदर पाथ है वो क्या है, वो ग्रासी है और वांटेड वेयर है, मतलब वहाँ पे लोग ज़्यादा ट्रैवल नहीं किए। तो इस रास्ते में लग रहा है कि लोगों ने ट्रैवल किया है। तो ये कैसे पता चलेगा? जब कोई आप रास्ते पे चलोगे, जो अगर जैसे मिट्टी होती है उसमें घास उगी होती है, अगर आप चलते हो तो वहाँ की घास क्या होती है, टॉर्न हो जाती है। टॉर्न होने के बाद वो रास्ता बना देती है और वहाँ पे उस एरिया में ग्रास नहीं होती, या फिर ग्रास क्या होती है, थोड़ा टर्न हो जाती है, ब्लैकिश वाला लुक ले लेती है। ओके, तो यहीं पे पोइट बोल रहे हैं कि जो दूसरा रास्ता जिसके बारे में मैं क्लेम कर रहा हूँ वो ग्रासी है और लगता नहीं कि उस पर कोई किसी ने चला है। तो हियर द पोइट इज शोइंग हिज चैलेंजिंग नेचर कि पोइट्स रियली डोंट वांट टू गो इन अ भेड़ चाल, एंड ही इज सेइंग दैट आई एम गोना चूज दैट पाथ, वो रोड मैं चूज़ करूँगा जहाँ पे लोगों ने ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया है। मीन्स वैसा स्ट्रीम लूँगा, वैसा कुछ करूँगा, वैसा कुछ करके दिखाऊँगा जो लोगों ने नहीं किया, एंड आई विल बी द फर्स्ट टू गो देयर। ठीक है, पोइट ये अपने बारे में सोच रहा है एंड ही इज़ थिंकिंग ऑल द थिंग। तो ही इज़ थिंकिंग एंड ही हैज़ डिसाइडेड नाउ दैट ही गोना टेक दैट प्लेस जहाँ पे लोगों ने ट्रैवल नहीं किया है। एंड बाकी ये वाला तो लग रहा है, उन्हें लग रहा है, वो उनकी थिंकिंग है कि उन्हें लग रहा है कि इस बात को बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया गया है और इस बात को नहीं किया गया। एंड आई एम गोना बी चैलेंजिंग, आई एम गोना बी आई एम गोना डू लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस वाला थिंग एंड ऑल दिस थिंग। तो ही इज़ थिंकिंग अबाउट सच थिंग्स। ओके, and both the morning equally lay. In the leaves no step had trodden black. Oh, I gave the first for another day, yet knowing how ways lead on the way, I doubted if I should ever come back. So now he took the another place. He just left that place and left that road, and now he's going towards that path which he has chosen. Okay, पर जैसे वो उस पर चल रहे थे, जैसे उस रास्ते पे वो जाते हैं, एंड ही रियलाइज कि मॉर्निंग जो होती है वो दोनों पाथ पे एक ही तरह से सूर्य की रोशनी, तो सूर्य तो ऐसा होता है कि डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, ठीक है, वो सबको इक्वली ट्रीट करता है। तो वो मॉर्निंग जो है इक्वली मॉर्निंग लग रही है, और जब वो आगे चलना चालू करते हैं, इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, तो लीव्स जो है वो ब्लैक नहीं हुए हैं, लग रहा है कि वो लेस ट्रैवल्ड है। ओके, वो रास्ता लग रहा है लेस ट्रैवल है, मे बी अनदर वन भी लेस ट्रैवल हो, पर जिस रास्ते पे वो चल रहे हैं वो उन्हें लेस ट्रैवल्ड लग रहा है। ओह, आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, एंड वो जो फर्स्ट वाला रास्ता था मैंने छोड़ दिया उस रास्ते को, एंड आई जस्ट टुक द अनदर वन। वाई जस्ट आई टुक द अनदर वन?
एंड आई वॉज थिंकिंग फॉर द अनदर डे कि मैं उस रास्ते को किसी और दिन मैं ट्रैवल करूँगा, बट देयर इज़ अ डाउट कि वो उस जगह से कभी वापस आ पाएंगे या नहीं. दैट डजंट मीन कुछ बैड होगा या फिर समथिंग एल्स. मीन्स अगर वो डिसीज़न अच्छा हुआ मे बी, तो वो इलाइट करेंगे अपने आप को, आगे बढ़ेंगे. और अगर बैड हुआ तो भी वो सिचुएशन में उसको हैंडल करेंगे, वहाँ भी वो किसी ना किसी तरह अपने आप को ढाल ही लेंगे. तो वो कितने अच्छे से ये बोल रहे हैं कि वो उन्होंने पहला रास्ता छोड़ तो दिया है, बट येट ही इज़ थिंकिंग अबाउट दैट प्लेस, दैट रास्ता कि उस पर जाते तो क्या होता. हम हमेशा अपने सिचुएशन में, अपने डिसीज़न पे हैप्पी नहीं होते. हम लोग 100% कॉन्फिडेंट होते ही नहीं किसी चीज़ पे. तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि मैंने भले ले लिया ये रास्ता, येट आई एम कन्फ्यूज्ड. ठीक है, वो कन्फ्यूज डाउट है कि वो उस रास्ते से कभी वापस आएंगे कि नहीं आएंगे. ओके. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by. And that has made all the difference. So I shall be telling, तो I shall be telling he is thinking about the future. कि मैं एक बार कभी कह रहा हूँगा या फिर कुछ कह रहा हूँगा कि बहुत डीप ब्रीथ के साथ, बहुत यहाँ पे एक्साइटमेंट भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है, खुशी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि उसके मैं कह रहा हूँगा, बता रहा हूँगा, क्या बता रहा हूँगा, एक समटाइम्स बहुत बहुत सालों के बाद मैं बता रहा हूँगा कि एक समय की बात है. एंड द थिंग्स जस्ट हैपन टू मी. आई वॉज passing through a path and I got just two diversion and in the roads, and I took the one and left the another one, and now what I have taken, what I have choose, and this मतलब हर एक चीज़ मेरा उसी डिसीज़न पे डिपेंड करेगा. मेरा फ्यूचर, मेरा लाइफ, मेरी हर एक चीज़ उसी बात पे डिपेंड करेगी जो मैंने फ़ैसला लिया. इसलिए वॉट एवर द डिसीज़न यू आर गोइंग टू मेक, जस्ट थिंक फॉर द फर्स्ट एंड जस्ट टेक योर टाइम. बिफोर टेकिंग द टाइम, मतलब होता है ना, किसी भी बिफोर टेकिंग द एनी डिसीज़न यू नीड टू थिंक एंड थिंक ऑफ इट and just take your decision. This is the moral of that poem. And thank you, students. I hope you understood.